প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন আখরিগঞ্জ নিউজ। আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরব। সেটা হচ্ছে রাম মন্দিরে কে কত টাকা চুরি করেছে তার একটি তথ্য আপনাদের সামনে আজকে তুলে ধরব। কে কত টাকা চুরি করেছে, কে কত টাকার কটা নোট নিয়েছে, কে কটা সোনা নিয়েছে, কে কটা চাঁদি নিয়েছে, বিভিন্ন জিনিসপত্র যে যা নিয়েছে পুলিশ সার্চ করে সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে উদ্ধার হচ্ছে। কার কাছে কত টাকা উদ্ধার হলো সে বিষয়ে জানাবো। পাশাপাশি রামশঙ্কর যাদব ওরফে টিনু যাদব, তিনি চুরি করে টাকা কোথায় রেখেছিলেন, পুলিশ ওর কাছ থেকে কত টাকা এবং কি কি উদ্ধার করলো, সম্পূর্ণ বিস্তারিত তথ্য আপনাদের সামনে রাখব। তবে একটা কথা, এই রাম মন্দিরে যারা চুরি করেছে তারা কিন্তু মহা বড় পাপ করেছে। রাম মন্দির ট্রাস্টের মহাসচিব চম্পত রায় মহাশয়, জুন মাসে যখন অভিযান চলে, পুলিশি অভিযান, তখন অবিনাশ শুক্লা, লবকুশ মিশ্রা, অনুকল্প মিশ্রা, রামশঙ্কর মিশ্রা, এই সমস্ত মানুষের বাড়ি থেকে যখন পুলিশ তল্লাশি চালায় তখন কার বাড়ি থেকে কত টাকা উদ্ধার হয়েছে বা কি কি সোনা চাঁদি উদ্ধার হয়েছে সব কিছু আপনাদের সামনে তুলে ধরব। পুলিশ যেটা বলছে, সূত্র মারফত যেটা জানা যাচ্ছে, মোট প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। ৭৯,৮৫,০০০ টাকা, প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে, এটা কিন্তু জানা গেছে। টিনু যাদব, তার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ টাকা। টিনু যাদব, তাকে ধরেছে পুলিশ, তার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ১ লক্ষ টাকা। ৫০০ টাকার নোট উদ্ধার হয়েছে ১৮০খানা। এছাড়াও আরও অন্য অন্য ১০০ টাকার নোট, ২০০ টাকার নোট, ৫০ টাকার নোট, এইসব জিনিসপত্র উদ্ধার হয়েছে। তারপর হচ্ছে অবিনাশ শুক্লা, তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ২০,৪০,০০০ টাকা, প্রায় ২০,৪০,৪৫,০০০ টাকা তার বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর ৫০০ নোট হচ্ছে প্রায় ৩৬০০, ২০০ নোট ৫৭৯টি, ১০০ নোট ১১৮২টি। এছাড়াও ৫ টাকা, ১০ টাকা এবং নোটের বান্ডিল, এবং পাশাপাশি তার কাছ থেকে ডলার, মানে যেটা আমেরিকান টাকা আমরা বলি, আমেরিকান টাকা মানে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যেসব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, হিন্দু সম্প্রদায়ের বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ এসে রাম মন্দিরে, রামের দরবারে যে দান করা হয়েছিল, সেই ডলার যেটা, সেটাও কিন্তু চুরি করা হয়েছে, তথ্য দিচ্ছে পুলিশ। অবিনাশ শুক্লার তার বাড়ি থেকে ডলার পাওয়া গেছে ১০০ নোট, মানে যেটা ১০০ টাকা আমরা বলি সেটা হচ্ছে ১০০ ডলার, মানে সেটা আমেরিকান টাকা অনেক, প্রায় এখন বর্তমান যার বাজার মূল্য প্রায় ১ টাকায় ৯০ টাকা। তো এইরকম ১০০ টাকার নোট, ১০০ ডলারের নোট উদ্ধার হয়েছে ৮খানা, ৫০ ডলারের নোট ২খানা, এবং ২০ ডলারের নোট ৯খানা, ১০ ডলারের নোট ৩খানা এবং ৫ ডলার এর নোট হচ্ছে ২খানা। এছাড়াও আরও অন্যান্য কিছু উদ্ধার করা হয়েছে, যার মূল্য প্রায় ভারতীয় টাকায় ১,০৫,০০০ টাকা। তার পাশাপাশি তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি সোনার চেন এবং একটি আঙ্গুঠি, অবিনাশ শুক্লার বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, এবং পাশাপাশি চাঁদিও উদ্ধার করা হয়েছে। অবিনাশ শুক্লার বাড়ি প্রতাপগড়। এই ব্যক্তি অবিনাশ শুক্লা, যেটা জানতে পারা যাচ্ছে, অবিনাশ শুক্লা ৩ মাস পূর্বে রাম মন্দিরের পাশে ঠেলা লাগিয়ে পানি বেচত, পানি বিক্রি করত, জল বিক্রি করত ঠেলা লাগিয়ে। মানে যখন চাকরিতে যোগ হয় তার ৩ মাস পূর্বে পানি বিক্রি করত রাম মন্দিরের কাছে ঠেলা লাগিয়ে। সেই ব্যক্তি হঠাৎ করে এত যে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হয়ে গেল কি করে? তাই তার কাছ থেকে অনেক টাকা উদ্ধার হয়েছে, প্রায় ২০,৪০,০০০, পাশাপাশি আমেরিকান ডলার, একটি সোনার চেন এবং আংটি। অবিনাশ শুক্লার ভাই ওখানে যোগ শিখছিল,
ওখান থেকে মন্দিরের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক করে, ট্রাস্টের যারা পদাধিকারী ছিলেন তাদের সঙ্গে সম্পর্কে আসে, ট্রাস্টের লোকেরা তাকে গণনার কাজে লাগিয়ে দেয়। এই সেই ব্যক্তি অবিনাশ শুক্লা। বিরাট বড় মানে চুরি ধরা পড়েছে তার বাড়ি থেকে। তারপর হচ্ছে করুণেশ পাণ্ডে। করুণেশ পাণ্ডের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে 18 লক্ষ টাকা, 18 লক্ষ, প্রায় 18,60,000 টাকা। 500 টাকার নোট উদ্ধার করা হয়েছে 3600টি, 200 টাকার নোট উদ্ধার করা হয়েছে 33টি, এবং তার পাশাপাশি 20 টাকার নোট, 10 টাকার নোট, 5 টাকার নোট, বান্ডিল, এই সমস্ত টাকা চুরি করে রেখেছিল করুণেশ পাণ্ডে। এছাড়াও যে সমস্ত মানুষ খুচরো পয়সা দেয়, 1 টাকা, 2 টাকা, 5 টাকা, 10 টাকার কয়েল দেয়, সে কয়েলের বস্তা সে তার বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিল, সেটাও কিন্তু পুলিশ উদ্ধার করেছে। তারপর হচ্ছে অনুকল্প মিশ্রা। অনিল মিশ্রার সিফারিশে টাকা গণনার কাজে লাগিয়েছিল অনুকল্প মিশ্রাকে। অনিল মিশ্রা তিনি হচ্ছে ট্রাস্টের সদস্য, রাম মন্দির ট্রাস্টের তিনি সদস্য। সেখানে অনিল মিশ্রার সিফারিশে টাকা গণনার কাজে লাগিয়েছিল অনুকল্প মিশ্রাকে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় 16,82,000 টাকা। 16,82,000 টাকা তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে। 500 টাকার নোট উদ্ধার হয়েছে 2853টি, 200 টাকার নোট 423টি, 100 টাকার নোট 700টি, এবং 50 টাকা, 20 টাকা আরও সমস্ত নোট তার বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। অনুকল্প মিশ্রা সে নিজে পাপ করলো। পাপ করার পর তার শালাবাবুকে অর্থাৎ লবকুশ মিশ্রাকে সে সামিল করলো সেই পাপে। লবকুশ মিশ্রা তিনি একজন ডেলিভারি বয় ছিল। ডেলিভারি বয় মানে যে সমস্ত পাড়া, গ্রামে, শহরে যে মোটর সাইকেলে করে জিনিসপত্র, বিভিন্ন রকম সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া, সেই ডেলিভারি বয় ছিল লবকুশ মিশ্রা। তার হঠাৎ করে 2 তলা 3 তলা বাড়ি কি করে হয়ে গেল? তার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে 14 লক্ষ, প্রায় 14,25,000 টাকা এই লবকুশ মিশ্রার বাড়ি থেকে। তাহলে এখন বুঝতে পারছেন আপনারা কত বড় চুরি হয়েছে। যে মানুষটা একটা রাম মন্দিরের বাইরে পানি বেচত, তার হঠাৎ করে বিশাল সয় সম্পত্তি হয়ে গেল। তারপরে যে ডেলিভারি বয়ের কাজ করতো তার 3 তলা বিল্ডিং হয়ে যাচ্ছে। অবাক করা কাণ্ড। তারপর হচ্ছে রামাশঙ্কর, তার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে 7 লক্ষ, প্রায় 7,32,000 টাকা, এবং তার পাশাপাশি চাঁদি এবং অন্য সামগ্রী রামাশঙ্করের বাড়ি থেকে উদ্ধার করেছে। এবং মনীষ যাদব, তার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় 2 লক্ষ টাকা। সেই সমস্ত মানে 500 টাকা, 200 টাকা, 100 টাকার নোট, 10 টাকা, 20 টাকার বান্ডিল তাদের বাড়িতে করা ছিল, সব কিছু উদ্ধার করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত যা হিসাব উঠে আসছে তাতে প্রায় 80 লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে, এই রিপোর্টটা আমরা পাচ্ছি। এর পাশাপাশি মনে করা হচ্ছে, অনুমান করা হচ্ছে, পুলিশের অনুমান, বড় বড় মাথা কিন্তু এর মধ্যে আছে। আস্তে আস্তে পুলিশ ধরবে, কারণ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের পক্ষ থেকে এসআইটি গঠন করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, যে সমস্ত রাম মন্দিরে যারা চুরি করেছে তারা কেউ ছাড় পাবে না, প্রত্যেক দোষীদের কড়া শাস্তি আমরা দেব, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা। সেই মোতাবেক পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি বিরোধী পক্ষের প্রচুর চাপ। ভাবতে পারছেন, একজন পানি বেচতো, একজন ঠেলা লাগাতো, সে এখন কোটিপতি। তারা শুধু চুরিই করেনি, মহা বড় পাপ করেছে রাম মন্দিরে ডাকাতি করে। 140 কোটি মানুষ
প্লাস ভারতবর্ষের বাইরে বিদেশ থেকেও যারা দান ধ্যানে এখানে আসতো, আপনাদের বললাম যে ডলার উদ্ধার করা হয়েছে, মানে বাইরে থেকে যারা আসতো তারা তো তাদের কাছে ডলার থাকতো, সেই ডলার দান বক্সে দান করা হয়েছিল, সেই টাকাও চুরি করা হয়েছে। মানে কোটি কোটি মানুষের আশা ভরসা, রামের প্রতি যে মানুষ ভরসা করে, সেই ভরসাটাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে এই চোরেরা। তাই সমস্ত রাজনৈতিক দল, পদাধিকারী, বিভিন্ন নেতাকর্মী চাইছে যে এই ঘটনার সত্যতা যাচাই হোক, সত্যতা যাচাই করে যারা দোষী তাদেরকে কড়া আইনের পথে কড়া শাস্তির দাবি সবাই কিন্তু জানাচ্ছে। এর আগে আপনাদের শুনিয়েছি অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বক্তব্য, তিনি ফাঁসি চেয়েছেন। কংগ্রেস নেত্রী, কংগ্রেস নেতারা বা অন্য রাজনৈতিক দলের যারা আছে তারাও কিন্তু কড়া শাস্তির দাবি করেছেন। পাশাপাশি এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কংগ্রেস নেত্রী তথা কংগ্রেসের মুখপাত্র দিল্লির সুপ্রিয়া শ্রীনাথে তিনি কিন্তু একেবারে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তিনার বক্তব্য শোনাবো আপনাদের, তিনি কি বলেছেন। অবশ্যই এই ভিডিওটি যারা দেখছেন ভিডিওটি শেয়ার করবেন, চ্যানেলটি লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। আই লাভ মাই ইন্ডিয়া, মেরা ভারত মহান। আপনারা দেখছেন আখেরিগঞ্জ নিউজ। मेरे कुछ सवाल हैं और उन सवालों को मैं दोहरा देती हूं अपनी मांगों के साथ। एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? क्या छिपाया जा रहा है? 80 लाख रुपए अभी तक बरामद हुए हैं, बाकी करोड़ों रुपए कहां हैं? कुल कितने की चोरी हुई है? 40 दिन में 70 चोरियां पकड़ी गई। 5.5 साल में कितनी चोरी हुई होगी? इसकी जानकारी, इसका असेसमेंट कैसे होगा? स्वतंत्र ऑडिट क्यों नहीं कराया जा रहा है? सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में डिलीट क्यों हो जाता है? उसका बैकअप क्यों नहीं रखा जाता है? क्या छुटभैया कर्मचारी इतने बड़े चढ़ावा घोटाले को अंजाम दे सकते हैं? इस चोरी के तार कितने ऊपर तक जुड़े हुए हैं? आज हर हिंदू के मन में यह सवाल है। जो काउंटिंग यूनिट थी उसमें उन्हीं लोगों के रिश्तेदारों की नियुक्ति हो रही थी जो कार्यरत थे। क्या प्रणाली यूज की जा रही थी? क्या क्राइटेरिया यूज किया जा रहा था नियुक्ति करने के लिए? किसका डिसीजन था ये? आरोप लगने के बाद एफआईआर में देरी क्यों हुई? एफआईआर में बड़े लोगों का नाम क्यों नहीं था? चंपत राय बंसल से इस्तीफा दिलवाकर उनको क्यों बचाया जा रहा है? उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की गई? उनकी जांच क्यों नहीं की जा रही है? इतना बड़ा घोटाला होता रहा और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी भनक कैसे नहीं लगी? क्या आपका पूरा खुफिया तंत्र, क्या आपका एलआईयू, क्या आपका आईबी, क्या आपका पूरा एजेंसीज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं? ट्रस्ट के लोगों की नियुक्ति किस आधार पर की गई? सिर्फ क्योंकि वो आरएसएस से संबंधित थे और उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा पाप हुआ, तो अब इस ट्रस्ट की क्या मान्यता रह गई? इसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है? चंपत राय जी बंसल को संरक्षण लगातार कौन दे रहा है? उनको कौन बचा रहा है? शिलान्यास से लेकर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी क्यों रखे हुए हैं? वो अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? प्रभु राम का मंदिर आस्था का, विश्वास का, मर्यादा का मंदिर है। यहां पर हर उस व्यक्ति ने दान किया है जिसकी प्रभु राम में, उनकी मर्यादा में, हिंदू धर्म में आस्था है। ये लोक आस्था का मंदिर है। यहां पर गरीब ने, मध्यम वर्ग लोगों ने अपनी बचत करके अपनी जरूरतों को काट कर दान किया और सरकार और ट्रस्ट ने करोड़ों हिंदुओं के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है और इस विश्वासघात को मैं महापाप कहती हूं। इसीलिए हमारी मांग है कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार एसआईटी को जो रिपोर्ट आई है उसको तुरंत सार्वजनिक करे, एक वेबसाइट पर डाली जाए जिसको सब लोग उसको पढ़ सकें। इस कलंकित ट्रस्ट को तुरंत भंग किया जाए। चंपत राय बंसल और अन्य जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो, उनकी जांच हो। शुरू से जितना भी चढ़ावा आया उसका एक निष्पक्ष स्वतंत्र ऑडिट हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़े और राष्ट्र को संबोधित करें। धर्म के नाम पर नफरत तो उन्होंने बहुत फैलाई है, धर्म के नाम पर जो आस्था पर प्रहार किया इसके लिए देश से माफी मांगे और इस पूरे महाघोटाले की जांच सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज के तत्वावधान में हो, उनकी देखरेख में हो,
क्योंकि मुंसफी कातिल और कातिल ही मुंसफ बनकर इस मामले की जांच नहीं हो सकती। मैं पुनः कहूंगी, भक्तों के पैसे खा गए बीजेपी के चोर, रामलला को लूट गए, ये है इनका दौर, ये इनकी असलियत है, ये इनका घिनौना चेहरा है। हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार बनकर इन्होंने जितना पाप और जितना असम्मान, जिस तरह से जो हिंदू धर्म के साथ किया है, वो दूसरा और कोई नहीं कर सकता है। आपके सवालों का स्वागत है, सवाल सो मोटो पर रहे। मैम एक बार मांग को रिपीट कर दीजिएगा, जो मांग। हमारी पहली मांग है कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार एसआईटी की जांच रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक करे, इसको एक वेबसाइट पर डाला जाए जिससे इस देश के 100 करोड़ हिंदू उसको पढ़ सके, उसको देख सके और समझ सके कितना बड़ा घोटाला हुआ है, किसने किया है। हमारी दूसरी मांग है कि जो कलंकित ट्रस्ट है, जिसकी नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हुई, उसको भंग किया जाए, उसकी कोई विश्वसनीयता अब रह नहीं गई है। हमारी तीसरी मांग है कि चंपत राय बंसल और उनके जैसे जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़ा पैसा डकार कर बैठे हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर हो, उनकी भी जांच हो। इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, वो आंख में धूल झोंकने का काम है। हमारी चौथी मांग है कि जब 40 दिन में 70 चोरियां सामने आ रही हैं, तो शुरू से जो चढ़ावा चढ़ा है उसका निष्पक्ष ऑडिट हो, स्वतंत्र ऑडिट हो। देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने भूमि पूजन से लेकर शिलान्यास और उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा सब किया, शंकराचार्यों को किनारे करके किया, हर मान्यता को ताक पर रख के किया, श्रेय लेने के लिए किया, आज इस चंदा चोरी पर, इस महापाप पर चुप क्यों है? उनको अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। इस देश से हिंदुओं की आस्था को आहत करने के लिए, विश्वासघात करने के लिए, धोखा करने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। और हमारी अंतिम और सबसे जरूरी मांग है कि इस पूरे महाघोटाले की जो जांच है वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में हो, जिससे सच सामने आए। क्योंकि एसआईटी जो बाबुओं से बनी है और बाबू को ही जाकर रिपोर्ट दे रही है, कातिल और मुंसिफ एक होकर सच सामने नहीं आ सकता है। धर्म को ठेस पहुंची है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ है, लोगों ने अपना पेट काट कर जो चंदा दिया था उसकी जबरदस्त चोरी हुई है, और सच सामने आना जरूरी है। मैम इधर से एक सवाल है। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 के पहले जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पे गोलियां चलवाती थी और कांग्रेस जो राम का अस्तित्व पे ही सवाल उठाती थी, आज वो लोग राम भक्त बन रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से मेरा सिर्फ एक सवाल है, इतना बड़ा चंदा चोरी होता रहा, लोग जब चंदे की बात करके बोलते थे कि भाई चोरी हो रहा है, उनकी नौकरियां जाती रही, आपको कुछ पता कैसे नहीं चला? आप कौन सी नींद सो रहे थे? पूरे कुएं में भांग पड़ी है क्या? दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कौन सी नींद आप सो रहे थे? आपको पता ही नहीं चला कि नाक के नीचे मंदिर में क्या चल रहा है? और मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, एसआईटी की रिपोर्ट इतनी गुप्त, इतनी गोपनीय क्यों रखी गई है? चंदा चोरी हुई है, चंपत राय बंसल सर्वे सर्वा थे, उनसे इस्तीफा लेके उनको किनारे चुपचाप क्यों निकाला जा रहा है? उनको बचाने की क्या कवायद है? योगी आदित्यनाथ जी से मेरा सवाल है कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? उनसे मेरा सवाल है कि इतने लोग जिन्होंने बड़ा बड़ा सोना चांदी दान किया, जिसकी रसीदें नहीं मिली, उसका क्या तत्वावधान है? उसका आप क्या प्रावधान कर रहे हैं? आप छोटे छोटे प्यादों को, जिनकी 12,000 सैलरी है, जिन्होंने 20 लाख का घर ले लिया, उनको पकड़ के हिंदुओं की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। आप हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार मत बनिए, क्योंकि स्वयंभू ठेकेदार बनकर आपने मेरे धर्म को कलंकित करने का काम किया है। आपने धर्म पर और आस्था पर सबसे बड़ा प्रहार किया है। जो गजनबी ने नहीं किया वो आपकी और आपकी पार्टी ने कर दिखा दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। आप हर महीने प्रभु राम के दरबार में पहुंच जाते हैं, आपको नहीं पता चला वहां क्या हो रहा है? आपके आका दिल्ली में बैठे हुए हैं, हर श्रेय लेना चाहते हैं राम मंदिर का, मोदी जी को नहीं पता चला वहां क्या हो रहा है? आपने ट्रस्ट बनाया, अपने चुनिंदा लोगों को डाला, एक एक व्यक्ति की आपने गारंटी ली, और उन्होंने हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया, और योगी जी और मोदी जी कहेंगे इस पर सवाल ना उठाओ। आपकी कवायद है कि आप कांग्रेस के लोगों को नजरबंद करके सच को छुपाएंगे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। Upon Champat Rai, but during the interrogation, the details which are coming out in open, he stated that he had no role to play in this entire theft which was being done, and in fact when he got to know about it, he had taken an action against the suspect and even filed an FIR. So he is also trying to say that he has no role in this entire issue. कौन सा चोर पकड़ने में कहता मैंने चोरी की है?
किसी चोर से जब इंटेरोगेशन करिएगा तो वो कहता है हाँ मैंने आपकी चोरी की है, FIR करिए, जांच कराइए, बुलाइए थाने में, रखिए सलाखों के पीछे, फिर पता चलेगा कितने की चोरी हुई है। महिपाल ने बोला 5 लाख की रोज चोरी हो रही, उसको नौकरी से क्यों निकाला? 2 और लोगों ने बोला चोरी हो रही है, उनको नौकरी से क्यों निकाला? जब लोगों ने कहा कि 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18 करोड़ की करके राम मंदिर को बेची गई, ये घोटाला नहीं था? ये चंपत राय बंसल जी ने नहीं किया था? चंपत राय बंसल जी इस बात का जवाब दे कि जब सिंधी समाज पूछ रहा है कि हमारी करोड़ों की चांदी कहां है, 200 किलो की चांदी की ईंटें कहां है, जब व्यापारी पूछ रहा है सोने की ईंट गिफ्ट करी थी वो कहां है, जब महिला पूछ रही है चांदी का काक भुशुंडी कहां है, कर सेवक पूछ रहे हैं 1250 सोने चांदी की रामशिलाएं कहां है, जब राम निवास से पलंग और हनुमान जी की मूर्ति चोरी हुई आप कहां थे? आपने कोई एक्शन नहीं लिया। जब SIT गठित हुई आपके खिलाफ FIR नहीं हुई, आप पतली गली से बचने के लिए आपने इस्तीफा दिया। आपका इस्तीफा इस बात का सबूत है कि दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है, पूरे कुएं में भांग मिली हुई है। ये असलियत है, आपकी निगरानी में चोरी हुई है। आई विल रिपीट फॉर योर बेनिफिट इन इंग्लिश। हु डू यू थिंक will confess that yes, I was responsible and all of this happened under my nose? But that has happened. Champat Rai Bansal was the end all and be all of the trust. He simply resigns and wants to walk away. I want to ask him that when Mahipal and several other people brought to your notice that there is huge theft happening by people, why were they removed? और चंपत राय बंसल जी से तो मेरा एक और सवाल है, ये जो 400 लोगों की फौज आपने खड़ी करी हुई थी, अपने निजी सुरक्षा कर्मी, ये क्यों आपने रखे थे? इनकी क्या जरूरत थी? दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सुरक्षा कर्मी थे, या 1 करोड़ रुपए महीने पर RSS से संबंधित बीजेपी के पूर्व सांसद की ये कंपनी आपने क्यों कार्यरत करी? अब तो ये भी निगरानी में होने चाहिए, इनसे भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। आपको क्या जरूरत थी 400 सुरक्षा कर्मियों की? उनकी क्या ड्यूटी थी गर्भगृह से लेकर गिनती के रूम तक और SBI तक पैसा पहुंचाने की? जब SBI ने आगाह किया कि यहां पर चोरी हो रही है, आपने क्या एक्शन लिया? I think Champat Rai Bansal has a lot to answer. He's a big shark. There is every effort being made to save him, but the reality is that whether it is him, whether it is Alin Mishra, whether there are several other people, Govind Giri, all of them associated with the RSS, including including the Prime Minister and the Chief Minister's most favorite officers. What were they all doing? Were they all caught napping? Did none of them know what is happening? That is the question Champat Rai Bansal will have to answer. Champat Rai Bansal cannot go scot-free. There should be an FIR lodged against him because one wants to know, where has that money gone? Has it traveled from Lucknow to Delhi and from Delhi to Nagpur? Those are the questions one must be asking. मैम, इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती जी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है हिंदुओं की आस्था पर अगर प्रहार हो, उस पर बोलना राजनीति है? जिन लोगों की सारी राजनीति ही हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार बनने में बीत गई, अगर वो आस्था पर प्रहार करेंगे, अगर वो आस्था पर हमला करेंगे, अगर वो रामलला के दरबार में करोड़ों रुपए की चोरी करेंगे, तो हम उनसे सवाल भी नहीं पूछेंगे। मायावती बहन जी को देखकर मुझे दुख होता है। क्या कद्दावर नेता थी, कहां से उठकर कहां आई, कितनी महिलाओं के लिए, इंक्लूडिंग मेरे लिए, वो एक आइडियल थी। एक दलित महिला, शोषित वंचित समाज की शिखर पर पहुंची राजनीति के। क्या हालत बना ली उन्होंने। हर बार बीजेपी को कवर फायरिंग देनी है, हर बार बीजेपी की ढाल बनना है और विपक्ष बनने का ढोंग भी करना है। मैं तेजपाल सिंह, अभी एक शो के दौरान बताया गया है, ब्लैक एंड व्हाइट शो के दौरान, कि साहब वो वेटिकन सिटी में भी चोरी हुई थी। मेरा सवाल ये है कि वेटिकन सिटी पर 1980 में ओशो ने उंगली उठाई थी और 93 कंट्रीज ने बैन किया था। तो क्या आज भारतीय जो यूरोप में जाने का सपना देख रहे हैं ईसाई कंट्रीज में, या ईसाई कंट्रीज जो रह रहे हैं, उनके लिए संकट पैदा नहीं किया जा रहा दूसरे धर्म को उंगली उठा के? ये कैसा कुतर्क है? क्या एक चोरी दूसरे चोरी को सही दिखा सकती है? ये कुतर्क की रामलला खुद देख लेंगे, इसमें मत बोलिए। रामलला ने देखा ना, हरा दिया इनको अयोध्या, उसके बाद भी इन पापियों ने चोरी नहीं बंद करी। ये कितना कुतर्क है? ये कौन कुतर्क दे रहा है? ये किस तरह का कुतर्क है? हमारे आराध्य के मंदिर में चोरी हुई, हमारे आराध्य के दरबार से चोरी हुई, हम सब ने उस
उसमें दान किया था, चढ़ावा चढ़ाया था अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार। आज देश पूछ रहा है वो पैसा कहां गया? वो पैसे की ये जो काला करतूते हैं, इससे किसके किसके घर बने, किसकी किसकी गाड़ियां बनी? मीट चिकन की पार्टी 50-50 हजार की हो रही थी, यही लोग कर रहे थे ना। ये कितना कुतर्क है। फलाने जगह मुझे क्या फर्क पड़ता है? हमारे आराध्य के मंदिर में अगर चोरी हुई है तो उस पर सवाल उठाया जाएगा। इस देश का मीडिया, और बड़े दुख के साथ कहती हूं, बीजेपी को कवर फायरिंग देना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब बात पाप पर आ गई है। पाप के भागीदार मत बनिए, दंश आपको भी सहना पड़ेगा। और कोई सवाल? बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी हाँ, पूछिए। मैम, अभी आपने जिक्र किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि विपक्ष क्यों इस सवाल को रेज कर रहा है, लेकिन बीएचपी लगातार ये कह रही है कि राम मंदिर आंदोलन में या राम मंदिर निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका रही है, और विपक्ष जो है इस मामले पर क्यों भुना रहा है, क्योंकि हम इस मामले को अंदरूनी तौर पर देख रहे हैं और हम इस मामले को खुद सुलझा लेंगे। ये वीएचपी और आरएसएस की बपौती है क्या राम मंदिर? यह 145 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, इमामे हिंद कहा गया है। ऐसे कितने मुसलमान हैं जो भगवान राम को आराध्य मानते हैं, उनमें आस्था रखते हैं। ये सिर्फ हिंदुओं की नहीं, ये हिंदुस्तान की आस्था, हिंदुस्तान की आत्मा पर प्रहार है। ये कोई इनका अंदरूनी घर की चोरी हुई है क्या, कि चंपत राय बंसल की लुटिया चुराकर अनिल मिश्रा भाग गए? प्रभु राम के मंदिर से चोरी हुई है। आपकी बपौती नहीं है राम मंदिर। श्री राम का मंदिर उच्चतम न्यायालय के ऑर्डर के बाद बना था, और असलियत यह है कि अगर इस तरह का कुतर्क दिया जाएगा तो फिर मैं पलट कर यह भी पूछूंगी कि जब देश की आजादी का आंदोलन लड़ा जा रहा था तो आपने अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया था। आप अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, माफीनामे लिखते थे, उनको बताते थे कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट और तमाम आंदोलनों का दमन हो। तो आप किस हैसियत से इस देश के बारे में बोलते हैं? ये कितना बड़ा कुतर्क है, कितना बड़ा पाप है। ये आपके घर में खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है, ये प्रभु राम के मंदिर में हुआ महापाप है, जिसका जवाब आपको इस देश के सामने करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने के लिए देना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आप लोगों का।